Hello, friends. Welcome to yet another episode of AC Wale Garam Charche, an initiative by Rata Gen Next Mumbai. On today's episode, we have with us Harshal Padia, who's the youngest president of Rata Mumbai. He's been in this industry since 2011 and has also been a core committee member since 2014. Also, he's in various events like VRF Mela, Business Chunotiya, and what not. But honestly, you know what? I can't summarize the 12 years of experience which he has. So, without much ado, over to you, Harshal. How are you doing today? I'm good, Drumil. How are you? I am good. So, अपने जो listeners हैं ना, उनको जानना है आपकी जर्नी के बारे में, बिकॉज मैं तो इतने टाइम में जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ. Correct. सो आप ऐसा कुछ बताए जो समथिंग विच दे डोंट नो एंड यू वांट टू लेट देम नो कि हु इज हर्षल पाडिया. So, basically, I started my industry career in 2011. Non-technical background. I have no idea about HVAC. I had a factory in Mahalakshmi, a small factory, which was started by my dad. So, went there, at the factory, sitting there, understanding things, doing small works. It was a good journey overall. 2 years of learning about the products and everything, understanding the industry. And it was not that easy job. You know, it was not like a cakewalk, I can say. Cakewalk. So, ups and downs तो होता ही है यार लाइफ में. होता है वो जनरली वो नोशन रहता है ना कि अभी सेकेंड जनरेशन है फादर के बिजनेस में, क्या तो इजी होगा. नहीं, इट इज नेवर इजी. हाँ, बिकॉज माइंडसेट क्लैश होता है उसमें. आपका माइंडसेट कुछ अलग होगा, आपका माइंडसेट एकदम फ्रेश होगा, एक नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के हिसाब से होगा. आप सोचोगे कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बट इवेंचुअली क्या होता है इसमें कि पिताजी जैसे बोलते हैं वैसे ही करना पड़ता है. बिकॉज देर इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हिज जर्नी. ही हैज लर्नड सो मेनी थिंग्स. सो वी हैव टू एक्सप्लेन हिम हाउ इट गोज. इट इज़ नेवर ईजी. So it was never easy. It was never a cakewalk. And overall, I never thought that I'm going to come in this industry, honestly. Never interested also. एक कौन इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या करेगा, ये क्या है? No, never thought of. कोल्ड चेन में इंटरेस्ट नहीं. नहीं, never. कोल्ड चेन पता था तभी वर्ड. No idea about the industry. I knew that my dad is doing something in air conditioning and manufacturing components and all that stuff. But I never wanted it. I did a job in a travel agency. I did something else. I was always like to explore things. I was like, देखते हैं. One fine day went to the factory and फिर चालू हो गया. चालू हो गया. Okay. I never thought I'll reach so far at this level, sitting with you and doing a podcast. Never thought of it. That's so humble of you. But then so now मैं थोड़ा राटा के साइड जाऊंगा. Yeah. कि we all know that previous term में आकाश was there as a president of Rata Mumbai. He had his own some personal challenges which he faced. So you stepped up then, and now you are officially the president of Rata Mumbai. So how was the experience? What were the challenges you faced during that term, and how did you cope up with it in Rata? So देख यार, इसमें कोप अप तो जैसा कुछ था ही नहीं. आई वुड से इट वॉज ईजी एंड इट वॉज नॉट ईजी ऑल्सो. दोनों चीज़ था. इसमें एडवांटेज क्या मिला पता है मुझे? मीर भाई के टेन्योर में मीर भाई स्टार्टेड अ इनिशिएटिव इन योर शू. In your shoe. If you remember, you were there that time. So उसमें हर महीने हमको एक महीना प्रेसिडेंट बनना था. करेक्ट. सो पहला प्रेसिडेंट मैं बना. Okay. वो उनके टेन्योर में. सो मैं बोला चलो यार देखते व्हाट लीडरशिप है ना यार. लीडरशिप इज ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल. बट जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन यार, कितने लोग थे फॉर दिस? आई मीन आप पहले थे. हाँ. बट हाउ मेनी आर वी लुकिंग एट? वी वर अराउंड 12 to 13 committee members that time. 12 to 13. Okay. And plus senior members 4-5, around 20-25 का ग्रुप था पूरा वो. ओवरऑल वो जो एक महीना मुझे मिला ना, इट वॉज अमेजिंग. वो एक महीने में ऐसा एक दिन नहीं था कि मीर भाई का फ़ोन नहीं आता था सुबह.
we present to you our wide range of chilled water systems, where traditional technology meets modern innovation. Chilled water systems have been a cornerstone of HVAC systems for decades, but our products are designed to meet the demands of today's world. फॉलोअप के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है. आई स्टिल रिमेंबर रोज सुबह मेरा मैसेज जाता था आरआरसी ग्रुप में, ये करना है, ये करना है, ये करना है. फ्रॉम देयर आई लर्नड डेलीगेशन कैसे होता है, क्या होता है. वो एक अपॉर्चुनिटी, एंड दैट टाइम आई वाज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन हिज टेन्योर. आई टुक इट अप. आई एंजॉयड दैट 1 month. आई स्टिल रिमेंबर we had scheduled around 7-8 programs in that month. 7 to 8. 8 ऑनलाइन ऑफलाइन छोटा बड़ा. तो सब लोग वही बोल रहे थे, साला सब तेरे को यही महीने में करना है क्या? तो तभी सॉरी टू कट यू, बट तभी कुछ गरम चर्चे हुए क्या? अपना एसी वाले गरम चर्चे है ना. गरम चर्चे तो हमेशा रहते ही है यार. देयर इज ऑलवेज अ गरम चर्चा इन आवर इंडस्ट्री. हाँ, इट्स नेवर. No, not in the industry. I'm talking about when you were a president and there were other committee members. So then तब कुछ गरम No, never. Always supportive यार. सब support करते थे. Hardik was new that time. Hardik was an action committee member that time. And everyone was supportive. Be it Reenal, be it Akash, be it Meerbhai. Everyone was supportive in that times. So सब लोग सिखाते थे क्या करना है, कैसे करना है. It was amazing. Honestly, it was amazing. So it helped you grow this basically. Yeah. In that 2 years, in Meerbhai tenure, I actually learned leadership. And that is how I was able to pull 6 months when Akash was not available because due to some medical emergency at home. So that is why I was able to pull it off that 6 months. It didn't even feel like a transition honestly. कि ऐसे जैसे मैं कमेटी मेंबर था तो वहाँ लगा भी नहीं कि it was going so smoothly. So I think you managed it well, and I think kudos See, to that you. is thank you, but that all depends on your rapport, honestly. कि आपका रैपो कैसे बिल्ड करते हो एक सामने वालों के साथ में. आप टीम मेंबर हो ठीक है, फ्रेंड हो ठीक है, हर एक चीज़ एक लेवल पे ठीक लगती है, बट जो आपका रैपो होता है ना 1-on-1, वो आपका काम कर देता है. So you have been part of Rata since 2014, right? So rapport build कैसे हुआ? I mean from day one was it like the same या gradually time मिला? नहीं. It was never the same. Gradually time मिला. I knew couple of people there since my childhood. Jaspreet ji हो गया, आकाश हो गया, प्रीतेश भाई was there, पंकज जी was there. इनको सबको मैं बचपन से जानता हूँ because dad is in the industry since last 50 years. तो 2014 की बात होगी या 15. I vaguely remember the year. Jaspreet ji told के राटा का EGM है, we're going to Silvassa for 1 night and we're doing a factory visit. Would you like to join? Well, I would love to join. At that age, I was 22, 24, 25. वो टाइम पे फैक्ट्री विजिट करना एंड यू नो एक एंथुसियाज्म होता है, एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है ना, एक्सपोजर मिलता है. तो बोला हाँ, आई वुड लव टू जॉइन, आई वुड लव टू कम. तो मैंने डैड को बोला ऐसा ऐसा. बोला गो बिंदास, गो एट. गया वहाँ पे, डिड अ फैक्ट्री विजिट ऑन द फर्स्ट डे. देयर वाज अ EGM ऑन इन द इवनिंग इन सिलवासा. दैट इज़ वेयर आई मेट अजीत फर्स्ट. आई न्यू पारस भाई, टिंकू जी, जसप्रीत जी के इनके साथ में तो रिलेशन पहले से था. तो आई मेट अजीत फर्स्ट एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट सम माइक्रो साइट्स एंड एवरीथिंग. राटा माइक्रो साइट इनिशियली which is for business के लिए जो business. That was the initial days when we were planning to do that. So I like that concept. So I just had a conversation with him saying, what is it like? What is the microsite all about and everything? So we were just discussing. I gave him some pointers. He's like, why don't you come on board? So I was like, well, direct bomb आ गया है तो come on board. ठीक है, let me think over it. I said. I discussed with my dad. Dad was like, "Jao, nothing wrong meeting people." And I was little comfortable because there were few people I knew since my childhood. So वो एक comfort zone था. So गया, all senior people sitting, young chap. Reenal was also there. So you would be then also the youngest, right? Yeah. I was the youngest that time, 24, 25. Actually didn't know what to do. ऐसे बैठा रहता था, listening people कि क्या करते हैं, क्या नहीं. धीरे it is exactly how you started coming in to Rata Drumil. Similar. Similar phase.
सो रैपो वहाँ से वो बनते गया, 1-on-1 सीखा इनसे लीडरशिप क्या होता है, कैसे होता है. सी आज everyone is doing very good in their business, Yeah, in their own trade. in their own trade. They are huge. So एक एक्सपोजर मिलता है, एक सीखने मिलता है. सो दिस इज अ मोमेंट आई वुड से कि जो आप अपने बिजनेस में रह के नहीं सीख पाओगे ना, आप यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में रह के सीख पाओगे. हर एक की अलग अलग चैलेंजेस होगी बिजनेस आई की. रिमेम्बर यू ऑल्सो टेलिंग कि एक जो अपना मीटिंग था ना कि सबकी लीडरशिप स्टाइल भी डिफरेंट होती है. एग्जैक्टली. सब एज इन इफ यू टॉक अबाउट अजित सर और एवरीवन, you learn from एवरीवन, या everyone. सो इट इज अप टू यू कि आप किससे क्या अडॉप्ट करते हो. कोई कूल एंड काम है, कोई अग्रेसिव है. क्या कभी ऐसा लगता है कि फैक्ट्री विजिट भारी पड़ी है जाके? No, never. See, I never taken that way. I've always taken like के आज कुछ सीखना है. वो एक स्पिरिट जब तक आप में है ना, so there is no one stopping you, honestly. As a 35-year-old Mohinga Mumbai president, it is an honor. A 75-year-old association with 2,200 members. It's not easy. Definitely. And maximum chunk of members are from Mumbai. So it is never easy. So it is an honor to be part of this kind of association. So Harshal, as you wear many hats, we know that कि आपने you are a part of the manufacturers forum also. You have been a part of the cold chain vyapar which was there. Also the government licensing part of Rata which is there. You are a part of that at young age of 35. मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितनी टोपियाँ पहनाते हो, पर आप खुद तो काफ़ी टोपियाँ पहनते हो. So and now you have the biggest hat, Mumbai president, Rata Mumbai का. So now what are the expectations? So basically here the sky is the limit, right? अपन जितना effort डालेंगे उतना होगा. But what are the expectation with the members should have from this term? And you also would be having some expectation as a president, right? कि I would achieve this, I would achieve that. So take us through this future of 24-26 right now, if I would say. So I will not take you to the future of 24-26 right now, okay? I will take you to the future of long-term industry, where industry is going to go. As far as my knowledge comes in, another 20 years is for India in terms of HVAC industry, be it a manufacturer, SSD or a trader. Things are moving in and around. Trend is changing. India is getting a manufacturing hub tag. Okay. So as a manufacturer, there is a huge potential. Huge means humongous potential to grow. So when you say cold chain is obviously it's going to grow day by day. Simultaneously as RAC is going to grow, as cold chain is going to grow. Both are equivalently going to grow. Cold chain, why? India is an agricultural land with lack of cold storages. Okay. So that is one point. In my personal business, when I say we are growing every year in a positive way. It is slow, but it is good. It is very good. Any next generation who wants to come into this industry, this is the perfect time to get into the industry. In the cold chain industry, right? Any HVAC industry, I would In say. the HVAC. In the So HVAC I've business. heard that basically there are not enough skill set or enough players in the cold chain. So the demand supply gap is somewhat not there. Is that true? I mean, there is a lot of demand, but then players are less. It is vice versa. There is a demand also. Players are also there. It is not that they're not there. But I can say you can count players, big players on your fingers. So is it like those 80-20 rule जो होता है ना management की 80% market are governed by 20% of the people out, वैसा ही? Yes, वैसा ही है. अभी बनाने वाले बहुत है दुर्मिल, बहुत है. छोटे बड़े बहुत है. आपको एक कोल्ड चेन इंडस्ट्री का एक कंडेंसिंग यूनिट बनाने वाला एक 200 फुट की फैक्ट्री में भी बैठा है और 20,000 फुट की फैक्ट्री में भी बैठा है. बट क्वालिटी का फर्क होगा ना फिर? बहुत फर्क पड़ जाता है ना. अगेन दैट इज अ बिग difference. And when it comes to cold chain is just not a set of few things. Cold chain is vast. It is very big. उसमें एक ही चीज़ नहीं आता. जैसे HVAC में आप
VRF ले लो, चिलर ले लो और स्प्लिट और विंडो ले लो, वैसा नहीं है इसमें. इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. और as India is moving towards decarbonization and everything, things are going to move fast. And you have to be in the trend. If you're not there, then I think Rata you have helps missed. here, right? Yeah. Because we had a program, I remember, on decarbonization where I think around 100 plus members were educated on Yes. what it is, how it is, and 80% of the members was not knowing about decarbonization, how it is going to come in. By 2030, India is saying 50% decarbonization. Where are we standing? I think after that program, even small traders, they started using those EV. EV tempos EV instead tempos, of yes, petrol ones. yes, And yes, I think that yes. was like a big gain out of that Yeah. seminar which we had. So last week मैंने ही मेरे बंदों को बोला कि EV टेम्पो लेना चालू कर दो. फर्क पड़ा बिजनेस में? अभी तो लास्ट वीक चालू किया है, वी जस्ट स्टार्टेड. सो next few months is going to be a transition phase. So let's see how it goes. So now, in terms of wearing hats, multiple hats, it is a learning. Learning है यार इसमें भी. सब लोग बोलते हैं कि अरे यार हर एक चीज़ मैं कैसे करूँ. See today in Rata when I say I'm a Mumbai president, correct. Seeing everything in terms of Mumbai, plus a national joint secretary, plus being a part of website, plus being part of marketing group, plus being part of Conclave 2025. So सीखने मिल रहा है इसमें. और घर पे टाइम दे पा रहे हो फिर ये सब करके वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है? हो जाता है. अगेन इट्स अ टाइम मैनेजमेंट. करना पड़ता है, हो नहीं जाता है. वी हैव टू डू इट बाय, वी डोंट हैव अ चॉइस. वो भी यहाँ से ही सीखे होगे ना राटा से कि कैसे. एग्जैक्टली. हमारे गुरु है ना टाइम मैनेजमेंट में, मिस्टर मीर संघवी. उनको देखो, करेक्ट. हफ्ते में 7 दिन में से तो 5 दिन वो ट्रैवल करते, फिर भी वर्क लाइफ और काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन. it is. व्हेन यू टेक अ लीडरशिप पोजीशन तो आप देखते हो ना कि इनके जैसे ये करना है, आई वांट टू बी लाइक दैट. सो एंड एट दिस एज इफ यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड दिस काइंड ऑफ लर्निंग, सो आप आगे 10 साल के बाद आपका माइंडसेट क्या होगा. दिस इज व्हाट यू गेन फ्रॉम राटा. दिस इज माई गेन, आई वुड से. I think even the members gain a lot through these programs and Yes. अगेन इट्स अ परसेप्शन, मेंबर टू मेंबर. कुछ बोलते कुछ नहीं मिलता, कुछ बोलते सब कुछ मिलता है. so you can't keep everyone happy. Happy. Exactly. That is how the world is. Because we as committee put in a lot of efforts behind this program, so I think it is up to the members also Yes. to take the benefit of it. So again now, so I was asking key expectations from this, any specific goals or what are we looking at in this? So there is one more thing which you have missed out. Government licensing, government connect. So through I have couple of personal connects in government. I would say rather that connects have helped me in certain ways to understand what is a functioning exactly in government and how it can be beneficial to our association. So in this next 2 years, if you understand, my theme is RECO. How do you spell it? RECO? RECO. Reach out and connect. Reach out and connect. So RECO. Okay. Yes. So reach out is basically reaching out to government, other societies, understanding the problems between the societies, how we can help. I would say example triple ID. We had triple ID. Triple ID. We had a representation at VRF. Triple ID members had come in. We understand. We had a meeting with them. They also want something from us and we also want something from us. So it's more like collaborative approach, right? You Yes. can't really move ahead unless. So association को भी I think साथ में आना पड़ेगा. Exactly. Just So same is with government. आज अगर हमको गवर्नमेंट से कुछ चाहिए तो हमको भी तो कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, कुछ दिखाना पड़ेगा. आज हम अगर 2200 मेंबर्स है, 2200 मेंबर्स या करेक्ट 2200 मेंबर्स है, आज गवर्नमेंट बोलेगा 2200 मेंबर्स आप पूरे इंडिया में बहुत कम है, वो बोलेंगे एक टाइम पे. बट जब वो 2200 मेंबर्स का वैल्यू देखेंगे और अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज विच वी आर and business giving generated. business, it is humongous.
It's huge. I It think is huge. government also has an eye on our industry, right? वरना decarbonization, PLI scheme ये सब थोड़ी implement होता है Yeah. if they are not. See, again, they have eye on our industry. It is not that they don't have it. But again, where our contractors and SSDs and everyone is facing 1828. Correct? So that is what the prime target. वो 28 से 18 नहीं लाना है हमको, but at least जो notices आ रही है ना उसके लिए हम advocacies कर सकते हैं. Lot of contractors and SSDs are getting notices. You must be aware. You are a SSD. Yeah, there are notices, and I think they can take technical help from good people. Rata can provide Yes, them. And yes. So एक फर्क पड़ जाता है उसमें. So एक ये मैटर नहीं है. There are n number of things. GST है, फिर आपका licensing with labor and other set of income tax हो गया या कुछ हो गया. This is where we have to create our face value. So next 2 years is only creating our value in government in terms of association. कि boss, now it's high time that you have to recognize us. I think this is a very focused approach है कि आपने clear कर दिया कि ये हमारा focus है, and I think actionable goals है Yes. कि next 2 साल में पता चल जाएगा कि government में कहाँ, because if we are reaching out तो कुछ तो change of course we'll see in next 2 years. तो वो बहुत evident हो जाएगा. Finger crossed, we should. We should. Expectation is that. Hard work pays off. It always does. So connect. Reco हो गया, आपका reach out हो गया, अभी connecting to members, understanding their pain points. This is what the next thing is. हमने 500-600 members तो बना लिए, but आज उनको हमको reach out करना है, उनसे बैठना है, बात करनी है. So next 2 साल में एक वो चीज़ है जो हमको करनी है कि हम उनके पेन पॉइंट समझे एंड लेट्स सॉल्व इट ऑफ. आज ग्रीवेंस सेल है. ग्रीवेंस सेल इज एन अमेजिंग टूल फॉर मेंबर्स, बट स्टिल सम ऑफ द मेंबर्स आर नॉट यूजिंग इट. जस्ट वाई कि अगर मैं कर दूंगा तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा. हाँ, वो डर रहता है ना. वो एक डर हो जाएगा, कस्टमर चले जाएगा, वो दूसरे के पास जाएगा. अरे भाई, जब तक आप आओगे नहीं, उसको एक्सपोज करोगे नहीं, आपसे वो तोड़ के दूसरे के पास जाएगा, उसके साथ भी वैसा ही करेगा वो. चेन चलती रहेगी. चेन चलती रहेगी. चेन तो कहीं तो तोड़ना पड़ेगा ना. यू हैव टू ब्रेक द आइस. इफ यू डोंट ब्रेक इट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. और उतना एडवांटेज तो उसको ही मिल रहा है. और मनी तो एनीवे बाद में रिकवर होने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं. वी हैव सीन सो मेनी केसेस, राइट, या इन राटा. अरे देयर हैज बीन केसेस कि एक मेल पे भी काम हुआ है, एंड देयर हैज बीन केसेस कि एक टेबल पे बैठे बैठे काम हुआ है. नहीं, Okay. वो तो इट्स वर्किंग वेरी वेल, आई थिंक सो. सो देयर वाज वन मेंबर, उनका कुछ 3-3.5 करोड़ पेंडिंग था. 3-3.5 करोड़. एंड कॉन्क्लेव में सितंबर में मेरे ख्याल से कुछ 3 या 3.5 लाख पेंडिंग बचा था. बस. ओवरऑल राटा हैज कलेक्टेड नथिंग लेस देन 15 to 20 crores of grievance amount. दैट्स ह्यूज. Yeah, so जो कॉन्क्लेव, but it's not huge. I would say it is penny. in In yeah, terms if you of compare industry size, it is very small amount. इससे भी बड़ा अमाउंट हो सकता है, बट उसके लिए मेंबर्स को आना पड़ेगा. सी, इट इज ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. एसोसिएशन तो मेंबर को पिच करेगा, बट मेंबर को भी एसोसिएशन को पिच करना पड़ेगा. मेंबर के बिना एसोसिएशन क्या करेगा और एसोसिएशन के बिना मेंबर क्या करेगा. इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. इट इज टू वे कम्युनिकेशंस. I think coming to the conclave also, which happened recently, उसमें भी, so honestly, not because I'm from Mumbai, but Mumbai does the things best always. So even the conclave was a huge hit, right? Yeah, it was indeed. It was hard work. So conclave into Mumbai was a huge hit, thanks to national team and obviously the convener Ajit. Fabulous job. उसमें भी सीखा भाई कि हर एक चीज़ अपने को नहीं करनी. हर एक चीज़ अपने को नहीं करनी. नहीं कर सकते. एज अ बिजनेस ओनर यू कांट पुट योर एफर्ट्स एवरीवेयर. कितने टोपियां पहनेंगे फिर आपका घर टोपी से भर जाए. एग्जैक्टली. इट डजंट वर्क. इट हैज टू बी कि अगर हम किसी को बुलाते हैं ना, तो एटलीस्ट हम देखिए कि हम उसका लेवल मेंटेन कर रहे हैं. हम उसको पेनी जॉब्स नहीं दे रहे हैं करने को. वी हैव टू सी दैट. वेरी ट्रू. See, today Delhi conclave is going to be much bigger. We have booked Bharat Mandapam, bigger than Sahara Star. Right. Looking forward to it, yaar. It is going to be the amazing conclave ever. And
today when it comes to Mumbai, for me, there is no regional. Rata is one for me. Because I have seen 90 मेंबर से 2200 मेंबर होते हुए. I've been part of that journey through and through. I've seen the kind of efforts our senior members have put in. It was never easy. Anything is not easy, so Yeah. you have to work towards it, right? Yes. So I think it's pretty much clear that RECO, so that is the Reco. theme of the year, Yes. right? But now coming back to everything that glitters is not gold. जो सब चमकता है वैसे तो दिखता नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सिल्वर स्पून पे सारा कुछ मिल जाएगा एवरी टाइम. सो यू वुड हैव फेस सम challenges. I'm talking about the business front of you also now, wherein you joined in 2011, right, in your business. So as a second generation, there are listeners who are listening to us who are second, third generation, and they have recently joined the industry, let's say 2 years. So you have been almost like 15, 18 years आपका हो गया है ये in our trade. So what is that you want to advise to youngsters, even someone like me who's been like just 4-5 years into this trade, or someone who's just entered, what would you like to, from the business perspective, from your own experience, you would like to? So first I'll start from you only. You said you've been part of the trade since 4-5 years. Yeah. I think so you've been part of the trade since a decade. And how is that? You were in the college that time you joined Rata. You came into Rata. During those During those days. You were in college, right? Yeah. तो कॉलेज खत्म करके कितना टाइम हुआ आपको? 6 साल 6 साल. 6-7 साल अब कितना हुआ? 5 हाँ 8-10 साल हो गया आपको? 8-10 साल. When you came in, okay, you were not interested to get into the industry. Correct me if I'm wrong. या बिकॉज मुझे लगा कि ये एसी वेसी क्या बेचेगा, एंड अपने इंडस्ट्री का इमेज ऐसा है ना बाहर की, वो अरे एसी वाला है, ये है वो है. तो ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि तब लगा कि अरे क्या करेगा ये ज्वाइन करके, वो पानी गिर जाए, कंप्लेन आती है, ये सब में मैं क्या करेगा. दैट वाज माय व्यू ऑनेस्टली. But still you're part of the industry. You're sitting here and doing podcast. When you came into Rata, you were raw. सीखा ना वहाँ से कुछ? बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने. From, I think so you've been part of Rata day and day from day one, in and off, and now you consistently since last 3 years. 3 years I've been, yeah, I'm attending every meeting and been a part of it. सीख रहा है ना उससे कुछ? हाँ काफ़ी कुछ एक्चुअली सीख तो मैं नहीं रहा हूँ कि आई गेट टू सी द ऑल दोज बिग बिजनेसेस एंड आई गेट मोटिवेटेड. You get motivated, plus एक पर्सनल कनेक्ट हो जाता है. आज मेरे ख्याल से 150 कमेटी मेंबर होंगे राटा के, जिसको अगर एक मैसेज करोगे भाई मुझे ये काम है ध्रुमिल दीक्षित RRC मुंबई, कोई ना बोलेगा? नहीं, हेल्प करेंगे. आई थिंक ऑनेस्टली मुझे RPL ऑल्सो इट हेल्प्ड अ लॉट कि आफ्टर द क्रिकेट लीग विच वी हैड इट वाज. सो दिस इज वन थिंग. सो नाउ स्टार्टिंग में मैंने बोला जर्नी वॉज नेवर ईजी. ट्रांजिशन हो जाता है माइंडसेट का. योर माइंडसेट इज डिफरेंट, सीनियर फादर माइंडसेट इज डिफरेंट. इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, प्लस आई हैड अ एल्डर ब्रदर ऑल्सो, वो भी बिजनेस में था फ्रॉम डे वन. दोनों का माइंडसेट अलग, मेरा माइंडसेट अलग. क्लैशेस होते थे, बट इसमें एक ही चीज़ काम करती है, वो है रिजल्ट्स. वो ना बोले, आप चुपके से वो काम कर दो और उसका रिजल्ट बता दो. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या मतलब टेक्नोलॉजी फ्रंट में जनरली इट इज अ नोशन कुछ भी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर मैं मेरा मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, एनीथिंग, आप उसमें रिजल्ट दिखा दो, वो कन्विंस हो जाएंगे. दिस इज माई टेक. सी टुडे व्हेन इट कम्स टू द ओल्डर पीपल, उनका एक बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेंड के साथ चलते हैं, ठीक है, और कुछ लोग वही अपने पुराने ट्रेंड में चलते हैं. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर योर शू इज. बट देन एज वी नो कि अगर आप ट्रेंड से अडॉप्ट नहीं करते हो तो देन यू बिकम ऑब्सोलीट, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स से कैमराज, अभी पहले कोडैक थे, अभी डिजिटल
स्मार्टफोन पे आ गया है. Again, So that we have to make that is where the second generation entrepreneur comes in. Then how do we communicate that with our Results, that is what I said. अच्छा directly results ही. आप अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है. Nothing like it. Like कोई एग्जाम्पल देके, फिजिकल एग्जाम्पल देके, यार एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल अगर समझ जाए तो नथिंग लाइक इट. अगर नहीं समझे तो रिजल्ट ओरिएंट करके दिखा दो. तो आज रिजल्ट ओरिएंट आप किसी को भी दिखा दोगे वो कन्विंस हो जाएगा. तो ऐसा बोलने का क्या, पापा 6 महीने का टाइम दे दो, मैं ये करके दिखा वो दूंगा. कभी नहीं होगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा. सीधा कर देने. कभी टाइम नहीं मिलेगा. आप करके दिखाओ. सी, आज एक फादर को जो उसका बच्चा है जिसने इंडस्ट्री ज्वाइन किया है, बिजनेस ज्वाइन किया है, उसको क्या चाहिए कि मेरा लड़का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले. उनका शोल्डर तो मैच नहीं कर पाएंगे बॉस. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. उनको ऐसा लगता है ना कि आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो मैंने खड़ा किया है उसको आगे लेके जाए, स्केल अप करें. स्केल अप करे. आप उसके ऊपर फोकस करो ना. रादर आप क्लैशेस करोगे, आप स्केल अप पे फोकस करो. आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, सेट तो है ही ना. आप स्केल अप पे फोकस करो. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन योर ओन बिजनेस एंड उसको रेक्टिफाई करना शुरू करो. फिर देखो रिजल्ट कैसे बनते हैं. उसमें भी चैलेंजेस आएंगे. हाँ. कहीं ना कहीं रुकावट आएगी उसमें भी. देयर विल बी टाइम वेयर योर फादर विल से और योर एल्डर ब्रदर विल से वो मत कर. बट फिर उसको कैसे करना, दैट इज अप टू यू. डोंट गिव अप. So is it like कि जो generally what happens is there are staff जो काफ़ी टाइम से है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, and you are just new to that organization. So someone told me this, I don't know how true is it, but you need to identify some people who can get work done for you. Is it something? Yes, it is true. You need to identify those guys. It is true. It is true. फैक्ट है वो. आज आपका कोई भी जूना स्टाफ हो, आपका बिजनेस में पहला दिन हो, आप डायरेक्ट जाके तो इंटरेक्शन नहीं होगा उसके साथ में. ओवर द टाइम उसके साथ भी रैपो बनाना पड़ेगा. कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट भी आएगा कि वो आपसे ज़्यादा समझदार होगा और आपको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ. एक पॉइंट भी वो आएगा. बट वो ओवरकम कैसे करना है वो हमारे ऊपर है. अगर वो टाइम पे ईगो लेके आए तो देन इट इज़ कि मैं ही ओनर हूँ, आई एम द एवरीथिंग. नो, You will have to become a technician also someday. you भाई मैंने काम किया है. आई हैव वर्कड इन माय शॉप फ्लोर. इट इज नॉट दैट आई हैव नॉट डन. आई हैव वर्कड. इट सी, दैट इज व्हाट आई सेड. इट इज नेवर अ केक वॉक. इट इज नेवर अ केक वॉक. Basically you have to do everything, right? Everything. अपने खुद का जब होता है तब आप जाके बैठ जाओगे तो फिर तो अच्छी चीज़ है वो. वो बहुत अच्छी चीज़ है वो लग्जरी सबको वो लग्जरी सबको नहीं मिलती ना. एंड इससे ही सीखने मिलता है. ग्राउंड लेवल से ही आप ऊपर आओगे तो वहीं से आपको सीखने मिलेगा. सो ओवर द 35 years जर्नी हैज़ बीन अप्स एंड डाउन्स. गुड डेज, बैड डेज. देयर वर डेज कि ऐसा टाइम होता था कि आज कुछ नहीं करना, बस फिनिश, घर जा रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ. ऐसे भी टाइम आ गया. ऐसे भी काम ही नहीं करना. ऐसा भी देखे दिन. फ्रस्ट्रेशन अलग हो जाता है. सिर्फ मी टाइम चाहिए. सो देयर वर डेज. इट इज़ नॉट दैट कि इट वॉज नेवर सिंपल कि बैठे हो तो बैठे ही रह गए. कभी कभी पहुँचे 10:30-11 बजे फैक्ट्री में, ऐसा एक पॉइंट आया 12:30 1 हुआ है, सब बंद करके बैठ गया, नहीं करना आज काम. हाँ आता है ऐसा फिर ऑनेस्टली. एट दैट पॉइंट यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस. कि मैं क्यों, then you start questioning, right? Yeah. Your life decisions. And But again, next day you have to restart. That is what is entrepreneurship. छोड़ दोगे तो छूटा ही रह जाएगा. mindset change करके आना है वापस, भले if you are bored or whatever it is. It is important. So, any second generation coming into this business, first thing, it will never be easy. Second, at this point of time, इससे अच्छी इंडस्ट्री नहीं है. ठीक है, बाकी दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये वो, दैट इज़ ऑल देयर. बट उसमें भी चैलेंजेस है. इंस्टाग्राम पे सब रील दिखता है, इसने 100 करोड़ का धंधा कर लिया 3 साल में, इसने 200 करोड़ का धंधा कर लिया 5 साल में. बट वो पहुंचने के लिए उसने कितने पापड़ बेले होंगे उसको ही पता है ना. हाँ मतलब सी इंस्टाग्राम बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है, इफ यू आर नॉट डूइंग दोस ट्रेडिशनल मार्केटिंग राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग भी काम का नहीं है.
So we have to understand somewhere and we have to keep our foot down कि no boss, I want to get into this industry. आज अगर आपके फादर ने एक 50 करोड़ 60 करोड़ 30 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है और आप बोलोगे कि मुझे नहीं जाना है उसमें, सो उनका जो पूरे लाइफ का जो भी हार्ड अर्न मनी और जो भी इतना हार्ड अर्न करके इतना नाम बनाया, इट इज़ आई कंसिडर इट एट वेस्ट. एंड इफ स्टिल आपको जी हुजूरी करनी है देन इट इज़ अप टू यू कि लंदन में जाके सेटल होना है या यूएस पे जाके सेटल होना है, दैट इज़ अप टू यू. देयर आर पीपल दे गोइंग आउट एंड डूइंग वर्क डिस्पाइट हैविंग फादर्स बिग बिजनेस ऑल्सो, एंड देयर आर पीपल हु हैव कम इनटू फादर्स बिजनेस जिनका छोटा बिजनेस था और उसको ऊपर लेके गए. सो दैट इज लर्निंग. इट्स अबाउट आई थिंक इंडिविजुअलिटी, राइट? कहाँ सेटिस्फैक्शन यस उसको मिलेगा. मैं तो एक ही करता हूँ कि अगर आपको नहीं जमता है ना, मत करो, पर एटलीस्ट ट्राई तो करो. अब ट्राई किए बिना कैसे छोड़ सकते हो? यू एंड मी, सेम एग्जाम्पल, नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू द इंडस्ट्री, बट टुडे सिटिंग हियर, आई एम अ प्रेसिडेंट, यू आर अ कमिटी मेंबर ऑफ राटा एंड डूइंग अ पॉडकास्ट. गरम चर्चे. एसी वाले गरम चर्चे. सो दैट इज हाउ लाइफ टेक्स इट. इट इज नेवर ईजी. तो थ्रू आउट द पॉडकास्ट एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप जहाँ भी जाते हो ना यंग ही रहते हो, चाहे वो कंपनी हो, कमिटी हो या आई डोंट नो, क्लबिंग भी ऐसा ही था कि आपने ही चालू किया अपने फ्रेंड ग्रुप में. सो ये यंग का तो टाइटल अभी अभी मिला है भाई. नहीं तो पर यंग तो ठीक हो, लोग यंग होते हैं, हाँ, पर अब यंग हो के जो सीनियर जो वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री है उनके साथ जो गरम चर्चे होते हैं, जो कमिटी मेंबर्स के साथ गरम चर्चे होते हैं, जो कंपनी में गरम चर्चे होते हैं, और शायद फ्रेंड्स ग्रुप में क्लबिंग में अगर लड़ाई की होगी तो गरम चर्चे हुए होंगे, तो अब वो मैनेज कैसे करते हो? हाउ डू यू मैनेज दिस बीइंग द यंगेस्ट येट मैनेजिंग द वेटरन्स? हाउ व्हाट over this journey from 2011, there were phases where my tempo was very high. उससे एक ही चीज़ सीखा, टेम्पो हाई करने से काम नहीं होने वाला. सो टेम्पो एज इन यू आर टॉकिंग अबाउट गुस्सा, टेम्पर और एनर्जी लेवल्स? गुस्सा, टेम्पर, अच्छा, टेम्पर, एंगर, मतलब उससे काम नहीं होने वाला. इट्स बेटर टू बी काम. आप जितना काम रहोगे उतना आपका माइंडसेट खुलेगा. काम रहो और काम से काम रखो. काम रहो और काम से काम रखो. उतना आपका माइंडसेट खुलेगा, उतना आप सामने वाले को इजीली एक्सप्लेन कर सकोगे. सो बी इट अ वेटरन्स, बी इट अ जूनियर, एनीवन, वो एक सिंपल सेइंग है यार, प्यार से हर एक चीज़ हो जाती है. एंड ऑनेस्टली व्हेन इट कम्स टू सीनियर्स, मैंने पहले ही बताया, इट वाज नेवर इजी. ओके, इन द बिजनेस देयर वर चैलेंजेस, ओवरकम इट. नाउ राटा उनके साथ से हूँ 10 साल से. सो आज 10 साल से उनके साथ में हूँ तो उनको भी मेरा माइंडसेट पता है और मुझे भी उनका माइंडसेट पता है. पर ये प्यार में कभी कभी ईगो होता है भी ना? तो ईगो आ जाता है ना. होता है ना. बट वही ना, जहाँ पे आज क्या होता है कि ईगो आने के बावजूद भी सब एक साइड में रख के फिर साथ में निकलते हैं ना. दैट इज माइंडसेट. आप कोई भी चीज़ को पकड़ के रखोगे, या तो चीज़ खराब होगी या तो रिलेशन खराब होगा. यू हैव टू डिसाइड कि आपको रिलेशन चाहिए कि आपका ईगो चाहिए. कि प्रायोरिटी क्या है ना उस पॉइंट पे, वो आपको एग्जैक्टली. सो दैट इज वेयर द प्रायोरिटी कम्स इन. सो यही चीज़ है यार. इट इज, आई वुड से, अगर आप आपके सीनियर को एक सवाल पूछते हो और अगर आपको सीनियर उसके सामने 2 सवाल पूछता है ना, सो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपका सीनियर आपको सिखाना चाहता है, या आज आप कुछ सीख के जाओगे. या सो इट इज लाइक दैट. इट इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन यार. इट इज ऑल माइंडसेट, आई वुड से. मतलब आपने का सही बोला, प्यार से हैंडल करना है. प्यार से हर एक चीज़ हो जाती है. और अगर सपोज मेरे ही कुछ एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे कुछ मैं मैसेज डालता हूँ ग्रुप पे, तो सीनियर के मैसेज आते हैं, हर्षल भाई ऐसा मत कर दे, हर्षल ऐसा मत कर, इसको चेंज कर दे. ठीक है, वो एट अ पॉइंट कभी कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार कितना कंट्रोलिंग होगा.
बट अगर वही मैसेज आप वापस काम माइंड से अगर आप रीड करोगे तो आपको आपकी मिस्टेक दिख जाएगी. करेक्ट. और अगर आपकी मिस्टेक नहीं है ना, तो अगर वो कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन उनको समझाओ कि मैंने ये तरीके से इसके लिए डाला था. और आपने पहले जैसे बोला वरना रिजल्ट्स दिखाओ. रिजल्ट सिंपल. सही है यार, मतलब अपना पूरा पॉडकास्ट सर्कल में आ गया. आपने रिजल्ट से स्टार्ट किया था और अपन वापस रिजल्ट पे आ गए. आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स. इट इज ऑलवेज अबाउट रिजल्ट. जूनियर केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड से एग्जाम्स के रिजल्ट से लेके लाइफ के रिजल्ट्स तक, इट इज ऑलवेज 35% से 90% के इट इज रिजल्ट. ऑलवेज रिजल्ट्स. लाइफ इज ऑलवेज रिजल्ट्स. नहीं, सो सही है यार. वी टॉक्ड अबाउट राटा एंड देन वी टॉक्ड अबाउट योर चैलेंजेस ऑल्सो. फिर ये साल में रिको के बारे में बात किया. वी टॉक्ड अबाउट योर business challenges which were there, and you were part of cold chain vyapar, VRF mail. I think you have seen it all, being the youngest. That is what this podcast was about. Now to conclude this, I would like to know कि एक जो बोलते हैं ना burning desire होती है at two levels. Okay, one burning desire for Rata, that is basically a message you want to give, your burning desire for Rata as an association, and one to the second generation, because जो second generation वाला part था ना podcast में, that would really connect with us as a second gen. I'm telling you, even I am a honestly. second gen. Yeah, so you have experience, so we can gain from it. So to those second third generation who are getting into business, and for Rata as a, to the members, to the association, just two messages by which we would conclude the podcast. So to Rata members I will start. Rata members से start ऐसे करेंगे यार. It is as I said, association के बिना members अधूरा है, member के बिना association अधूरा है. It's a win-win situation. Today we are in a phase कि अगर हम एक साथ में नहीं जुड़े तो हम बिखर जाएंगे. आई रिमेंबर उर्वेश भाईज आर वाइस प्रेसिडेंट पॉडकास्ट के एक लकड़ी लो, उसको तोड़ना आसान है, और एक बंच ऑफ It's difficult. पीपल इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो हम जितना जुड़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है. आज जो एसोसिएशन ये लेवल पे पहुंचा है, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाला. इससे और ऊपर जाना है भाई. ये तो अभी तो शुरुआत है. यू कैन से इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. Just to start. So I would tell only one thing. More and more members, welcome. Within the industry, spread the news. Let's connect. Let's reach out to the association. Let's discuss the pain points. Let's resolve the problems. Coming together. There is only one way. If we don't come together, problems are not going to get resolved. मैक्सिमम आई वुड इनिशिएट कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं आज की तारीख में इंडिया में, आप अपने जो दोस्त है जो इंडस्ट्री में हैं उनको बोलिए कनेक्ट होने के लिए, उनको बोलिए मेंबरशिप लेने के लिए. एडवांटेजेस दिखाइए. ऐसा नहीं है कि आज कोई भी मेंबर ने एडवांटेज नहीं लिया है. द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस इंडिया, बी इट इन टर्म्स ऑफ GST, Excel, HR, Posh, we did Posh, VRF. There are n number of programs which is happening across the nation. So आज कहीं ना कहीं members को तो फायदे हो ही रहे, ऐसा नहीं है. So more we connect, more we solve the problems. That is there. That is one thing. Now, second question, generation next. I've already said how to get into the business, how you can issues which you will be having with your seniors. It can be solved with, again, the mindset. More and more, as the business is growing, we will need new young people coming in the business. And trust me, for next 20 years, there is no limit for this business. It is going to grow only. The amount of constructions and everything which is happening across the globe, across the nation. So industry is going to grow. Today I know a couple of people sitting in Mumbai doing a contracting job in Kenya, in Dubai and everywhere. आज अगर वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? What is stopping you? True. The kind of motivation. सीखो ना यार, आप सीखो. अगर आप जब तक सीखोगे नहीं आपके कॉम्पिटिटर से,
तो आप कुछ नहीं कर सकते. टुडे इट्स ऑलवेज लर्निंग, आई वुड से. रादर अगर हम एक वो माइंडसेट में जाएंगे कि हम मेरे को इसको गिराना है, सब मैं ही खा जाऊँ, ऐसा नहीं होता. नहीं हो. वैसा नहीं होता. कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा खड़ा होगा, वो पूरा वाइप ऑफ भी कर देगा कभी कभी आपको. वन मिस्टेक कैन टोटली स्क्रू यू इन बिजनेस. सो जनरेशन नेक्स्ट, मोस्ट वेलकम in the industry. Please do come first to Rata, To the programs. to the programs. Understand. So we had a Generation Next session last month in the Rata office. And in VRF, I saw a couple of people coming in for the programs. And I really liked it, the approach. And I think so we're going to board 1 or 2 more Generation Next also in our committee. So again, इट्स अ गुड इंडस्ट्री. गेट इनटू इट. एक बार ट्राई कीजिए, बिना ट्राई करिए इंडस्ट्री में मत छोड़िए. आइए, ट्राई कीजिए. 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना. अभी तो आप यंग हो, 20, 21, 22. समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. वो तो है ही. दैट इज अप टू यू. या सो आई थिंक सही था पॉडकास्ट. एंड टू समराइज, मेरे माइंड में ऐसे 3 सेंटेंस आ रहे हैं इफ आई वांट टू समराइज द पॉडकास्ट कि बी यंग, शो प्यार, एंड बी द रिजल्ट्स यू वांट टू सी. यस. That was the podcast all about.